Everyone, myself Aditi Singh from MSc first semester microbiology, and my seminar topic is colligative property and osmosis. So firstly we will see content. First is introduction, second is definition, third type of colligative property which include vapor pressure lowering, boiling point elevation, freezing point depression, and osmotic pressure. Here we will discuss about osmosis and afterward we will see osmotic pressure. First is introduction. Different solutes that produce different numbers of solute particles when they are dissolved. डिफरेंट सॉल्यूट्स जो डिज़ोल्व होने पर डिफरेंट नंबर में सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं. Any property of a substance that depend on or varies according to number of particles, molecules or atoms present but does not depend on the nature of the particles. किसी भी substance की कोई भी property means जो depend करती है या vary करती है number of particles पे means molecule और atom पे but number of particles पर depend नहीं करती है. Definition. The properties of solution which depend upon the number of solute particles, molecules or ions present in a definite amount of solvent but not on the chemical nature of solute are called colligative properties. सॉल्यूशन की ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ आयंस या फिर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स. इसी को हम सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. इस तरह की प्रॉपर्टी में एक चीज़ ये भी है कि ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर ही डिपेंड करती है, वो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है. Colligative properties of solution is directly proportional to number of solute particles present in solution. Means solution में present जितने भी number of solute particles हैं वो solution की colligative property के directly proportional होते हैं. Colligative properties are mainly classified into four parts, which is vapor pressure lowering, boiling point elevation, freezing point depression, and last one is osmotic pressure. So here our seminar topic is colligative property and osmosis. So only we will discuss about osmotic pressure and osmosis. So now moving on to the next topic, which is osmosis. Osmosis. It is a spontaneous net movement of a solvent like water across a semi-permeable membrane from a less concentrated solution into a more concentrated one, thus equalizing the concentrations on each of the membrane. ऑस्मोसिस क्या है? जब सॉल्यूशन को सॉल्वेंट से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करते हैं तब सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं. इन शॉर्ट, जब जो प्योर सॉल्वेंट है मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस. ये प्योर सॉल्वेंट है जिसका कॉन्सेंट्रेशन होगा लो कॉन्सेंट्रेशन है और इसका कॉन्सेंट्रेशन है हाई. तो ये जो मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस. और यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जब मॉलिक्यूल पास होंगे तो इसका सॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज़ होगा और यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस टू टाइप्स के होते हैं, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस. एंडोऑस्मोसिस क्या है? When a cell is placed in hypertonic solution, the water moves inside the cell and swells. This movement of water inside a cell is known as endoosmosis. This happens because the solute concentration of the surrounding solution is less than that inside the cytoplasm. तो पहले देख लेते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर लेवल होता है लो और इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है.
ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, उसमें अगर हम सेल को रखते हैं तो एज़ कम्पेयर टू प्योर वाटर या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा पानी है, उससे तो कॉन्सेंट्रेटेड ही होगा, है ना। तो जो बाहर जो सॉल्वेंट है वो अंदर की ओर मूव करने लगेगा, सो इट विल रिजल्ट इनटू एंडोस्मोसिस। और जो फुल्ली स्वेल सेल होते हैं वो क्या होते हैं, टर्जिड होते हैं। जैसे यहाँ पे एंडोस्मोसिस में क्या है, सेल है वो फुल्ली स्वेल हो गया है, तो ये क्या है, एंडोस्मोसिस है। Exosmosis, when a cell is placed in a hypertonic solution, the water moves out of the cell and cell become flaccid. This movement of water out of the cell is known as exosmosis. This happens because the solute concentration of the surrounding solution is higher than that inside the cytoplasm. तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, इसमें क्या होता है, वाटर का लेवल हाई होता है और ये क्या होता है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मीन्स अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रखते हैं तो क्या होगा, जो सेल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो बाहर की ओर आने लगेंगे और इट विल स्टार्ट श्रिंकिंग। तो जो फुल्ली श्रिंक सेल है उसको क्या बोलते हैं, फ्लैसिड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे साइटोप्लाज्म के कॉन्सेंट्रेशन से क्या है, ज़्यादा है। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं एंडोस्मोसिस का। जैसे यहाँ पे लिया गया है एंडोस्मोसिस में रेजिन को अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो क्या होता है, स्वेल हो जाता है। और एक्सोस्मोसिस में अगर हम ग्रेप्स को सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो वो क्या है, श्रिंक हो जाता है, इसलिए क्या है वो एक्सोस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? The excess pressure which must be exerted on solution side in order to prevent the flow of solvent molecules toward the solution side when both are separated by semi-permeable membrane is called osmotic pressure. जब एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाता है सॉल्यूशन के साइड पे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, टुवर्ड सॉल्यूशन साइड when both are separated by semi permeable membrane, मीन्स जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों को सेपरेट किया जाता है। इन शॉर्ट कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को रोकने के लिए ऑस्मोसिस के अपोजिट डायरेक्शन में सॉल्यूशन को जब हम प्रेशर अप्लाई होता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। The minimum pressure that prevent osmosis is known as osmotic pressure. मिनिमम प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करे उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है जिसका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, और ये इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। मीन्स जो हमारे मॉलिक्यूल हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, मीन्स कुछ ही पार्टिकल्स को अलाउ करता है, मॉलिक्यूल पार्टिकल को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाने को, मीन्स ट्रांसफ़र होने को अपने। ये क्या है, ये लगा हुआ है पिस्टन, इससे क्या है, हमें प्रेशर अप्लाई करेंगे। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ेगा। अगर इस साइड पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा, और अगर इस साइड पे अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो क्या, ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। और एक टाइम पे ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जब
दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या चीज़ से, पाई से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे क्या है, पाई इज इक्वल टू CRT। मीन्स जो यहाँ पे पाई है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, C है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, R है गैस कांस्टेंट एंड T है टेम्परेचर। थैंक यू।